recording. So first topic, significance of signals and systems, applications of signals and systems. Next topic, we will learn about what is the difference between signals and systems with examples. Then we are going to study about the basic elementary signals. Then I will be providing you the templates for these elementary signals, continuous time as well as the discrete time. And we will be solving some practice problems and I will be giving you the homework assignment. So all of you are ready to get started? Please type in the chat box, I am ready. I am are. Yes, very good. Yeah, Sunil, Tushali, Shushankar. Who else is there? Anuja. Remaining students also reply. हर एक ने reply करना है. I want each and every response. Yeah, Shravani. Where is Shivani? Shivani is also there, na? Harshita. Yeah. Yeah, very good. Shivani is also ready. Very good. Testing is over now. So before starting with the actual content, let us discuss about the action plan to study the subject signals and systems. So the very first point is that, let me take the laser pointer first. Be positive. Okay, this thing is very, very important. You should be positive about this subject and you have to do the affirmations daily. Daily आपको कौन से affirmations करने हैं? That signals and systems is a very simple and easy subject and I will definitely clear this subject with very good marks. See, ये जो affirmations है उसका बहुत ज़्यादा importance है. आप जिस नजरिए से सब्जेक्ट को देखते हैं वैसे ही आप उसको पाते हैं. Okay, so these affirmations are very, very important, my friends. Then what you have to do, I will be providing you with the recordings. तो आपको वो recordings जो है वो daily उसको सुनना है and जो भी मैं homework दूंगी वो homework आपको, तो मैं daily आपको एक online test देने वाली हूँ हर एक session पे. आज का day 1 session हो गया तो ऑनलाइन टेस्ट की एक लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूंगी. ठीक है, उसके मार्क्स जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ आपको ही पता चलने वाले हैं. ओके, तो आपको ये ऑनलाइन टेस्ट जो है उसको देने से पहले क्या करना है, आपको ये जो रिकॉर्डिंग है वो उसको फिर से देखना है, फिर से सुनना है एंड देन आपको वो ऑनलाइन टेस्ट देनी है. एंड ऑल्सो कुछ अगर मैंने प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं एज अ होमवर्क, उसको भी आपको सॉल्व करना है. इससे क्या होगा, जो हम टॉपिक्स डेली ऑनलाइन लाइव सेशन में कवर करेंगे वो आपके टॉपिक जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे एंड वो उसी दिन में आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड बाद में जब एग्जाम रहेगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक रिवीजन करना पड़ेगा. ओके, so you can ask the doubts on the same day or at the end, same day at the end or next day at the start of the session. तो आपको डाउट्स कब आ सकते हैं, जब खुद आप कुछ सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे,
तभी आपको डाउट्स आएंगे। तो ये डाउट जो है आप नेक्स्ट डे के शुरुआत के सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे भी आप आपके डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू? द एक्शन प्लान, if it is clear then please type clear. Okay, very good. Harshita, Shiv Shankar, Shivani, very good. Yeah, Rushali, Anuja, Sunil, very good. So let us proceed further. So this slide we have discussed in the webinar also. What is the significance of signals and system? तो सिग्नल्स एंड सिस्टम के कंसेप्ट जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड में यूज किए जाते हैं। Ideas and techniques associated with it plays very important role in diverse areas of science and technology. So signals and systems, it is used in system characterization to understand how it will respond to various inputs. तो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टडी किए थे वेबिनार में भी, एनालिसिस ऑफ अ सर्किट एंड डिटरमिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर किसी सर्किट को हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, तो उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस टाइप के इनपुट हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, किस टाइप का आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, ये सारी बातें एनालाइज करने के लिए हमें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो है वो हमें यूज होता है, उसकी जरूरत होती है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्स, एयरक्राफ्ट जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, जो पायलट सिग्नल्स देगा उसको, प्लस जो सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर्स जो एयरक्राफ्ट पे लगे रहेंगे, उस सेंसर को भी एयरक्राफ्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस सबका एनालिसिस करने के लिए भी हमें सिग्नल्स एंड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। देन व्हाट इज द नेक्स्ट? डिजाइनिंग सिस्टम्स टू प्रोसेस सिग्नल्स इन पर्टिकुलर वेज। पर्टिकुलर वे में अगर हमें सिस्टम को डिजाइन करना है तभी हमें सिग्नल्स एंड सिस्टम की जरूरत होती है। लाइक नॉइज रिडक्शन in communication system, image restoration and image enhancement. Then design systems to extract specific pieces of information from signals. जैसे कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट जो है हमें ईसीजी सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करना है। एंड जो शेयर्स का डेटा रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस एंड ऑल दिस थिंग्स, उस पर से हमें क्या करना है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो शेयर्स का 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद या 1 मंथ के बाद क्या रेट होगा, ये हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। ओके, वेदर दिस पीपीटी इज अंडरस्टूड, प्लीज लेट मी नो significance of signals and systems. Please reply. If any doubt, you can ask the doubts. I have taken this rapidly because we have covered this slide in webinar and all of you have attended the webinar. Yeah, Shivani, Harshita, Rushali, Shivshankar, Sunil, very good. So which are these areas where signals and system it is used? That is the applications of signals and system. First area, circuit design, communication and speech processing. Then next one, chemical process control, energy generation and distribution
system. In biomedical engineering, acoustics and seismology, then aeronautics and astronautics. See, जहाँ पे सिस्टम है एंड सिग्नल्स है, उस सारे फील्ड में सिग्नल्स एंड सिस्टम का यूज होता है. So next slide, it describes about what is the difference between signals and systems. दोनों में क्या difference है? See, we can define the signals as signals are functions of one or more independent variables, and it contains some kind of information in it. So we will take one example here. Two examples are there. Okay, it contains information about the behavior or nature of some phenomena. See, this is the first example. It is of electrical circuit. Okay, which circuit it is? It is the audio amplifier. So it stands or it describes example of system. उसको हम किस टाइप का इनपुट दे सकते हैं? It is the voltage signal. ठीक है? So it is the example of signal. While the output signal y of t, it is the response which is given by this system. System जो input signal को respond करेगा and जो output signal produce करेगा, that will be the output signal. Yes or no? तो इस example में ये electrical circuit जो है audio amplifier, it describes the system. While this input signal and output signal, these are the examples of signals. Say, you can see here V of t and Y of t, two signals. What is t represents? T किसको represent करता है? Can anybody tell me? T क्या होता है? What t stands for? Yeah, it is time. It is the independent variable. T जो है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट, किस पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली वैरी होता है. जैसे टाइम इलैप्स होता है, 1 सेकेंड हो गया, टाइम आगे बढ़ जाएगा. 1 मिनट हो गया, टाइम आगे बढ़ जाएगा. सो टाइम, इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, सो द सिग्नल, इट कैन बी द फंक्शन ऑफ one or more independent variables. अभी ये जो सिग्नल दिख रहा है V of t, it is the function of a single independent variable. So we'll take one more example. This is the automobile system. ये जो automobile system है, उसका input क्या है? Input signal is accelerator pressure. Okay, जो भी ऑटोमोबाइल चला रहा है वो क्या करता है? He or she, it will apply pressure on the accelerator pedal. एक्सीलरेटर पे वो जो गाड़ी चला रहा है वो क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा. तो P of t क्या है? P of t, it is the input signal. How this system will be responding to this input signal P of t? सिस्टम पे क्या असर होगा अगर यूजर क्या कर रहा है? एक्सीलरेटर पे अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल विल गेट चेंज्ड. yes or no? So the speed V of t, it is the output signal, while accelerator pressure P of t, it is the input signal. Now these two, P of t and V of t, are the examples of signals, while automobile, it is an example of a system. Now, how we can define this system? So I have defined the system here in the second point. The systems respond to particular signals by producing other signals. System क्या करता है?
जो पर्टिकुलर सिग्नल उसको दिया जाएगा, फिर ये जो ऑडियो एम्पलीफायर है उसको वोल्टेज सिग्नल ही आपने अप्लाई करना चाहिए। अगर हमने ऑडियो एम्पलीफायर को साउंड सिग्नल या ऑडियो सिग्नल दिया तो ऑडियो एम्पलीफायर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्या? प्लीज लेट मी नो। इसका मीनिंग क्या है? सिस्टम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। या ऑडियो एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ किसको रिस्पॉन्ड करेगा? वोल्टेज सिग्नल। तो पर्टिकुलर सिग्नल ही अगर हमने सिस्टम को अप्लाई किया है, अभी यहाँ जो ऑटोमोबाइल है, अगर हमने प्रेशर सिग्नल जो है पी ऑफ टी, उसके बजाय अगर हमने वी ऑफ टी अप्लाई किया, वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया, तो कुछ असर होगा क्या ऑटोमोबाइल पे? यस, प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ यू। यस, हाउ? वोल्टेज सिग्नल का कैसे असर होगा? एक्सीलरेटर पे अगर हमने वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया तो स्पीड चेंज होगा क्या ऑटोमोबाइल का? नो, यस, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड। वेरी गुड शिवशंकर। तो सिस्टम का मीनिंग ये है कि सिस्टम जो है, जो जो इनपुट वो सिस्टम के लिए इंटेंडेड है उसको ही वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, यस, एनी डाउट? Anybody is having any doubt? Okay, so we will proceed further. Yeah, so this is all about signals and systems. Now, this is the template which is showing the elementary signals. Elementary signals का क्या significance है? ये basic signals है जो हमें signals and system में हर जगह पे लगने वाले हैं. Okay, this first signal, it is the unit impulse. So all these are the continuous time signals. Continuous time and discrete time में क्या difference है? Yes, continuous time किसको बोलेंगे? When the time axis or the x-axis, it is the time t. It is continuous. कैसे रहेगा? 0, 1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1, हर एक वैल्यू जो है t की वो क्या करेगा? सिग्नल लेगा। वैसे डिस्क्रीट टाइम में नहीं रहेगा। डिस्क्रीट टाइम में क्या रहेगा? ओनली इंटीजर वैल्यूज, होल नंबर्स विल बी देयर फॉर n. n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinity, only the whole numbers. And towards minus infinity, -1, -2, -3 up to minus infinity. ठीक है, डिस्क्रीट टाइम में 1.1, 1.2, 2.3 ऐसे वैल्यूज, n की ऐसी वैल्यूज नहीं होगी. All of you understood this CT and DT signal? CT सिग्नल में t की कोई भी वैल्यू हो सकती है. फ्रैक्शन, t can be fraction of time. Okay, but n, it should be whole number. This is the difference. Okay, very good. See how we can define this impulse signal. It is represented by delta into bracket t, which is equal to 0 for t not equal to 0. इस सिग्नल की वैल्यू 1 रहेगी. कहां पे 1 रहेगी? ओनली t इक्वल टू 0. t नॉट इक्वल टू 0 पे क्या रहेगी वैल्यू? 0 रहेगी. ओके, दिस इज द यूनिट इम्पल्स.
अगर हम डेल ऑफ टी का इंटीग्रेशन लेंगे ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? वैल्यू कितनी होगी? वो 1 रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ टी डी टी ओवर minus infinity to infinity will be 1. Now, the next signal, it is the discrete time unit impulse, or it is also called as unit sample signal. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ऑफ एन। ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा वो n रहेगा। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है? दिस इज द मेन डिफरेंस while representing these two signals. So del of n is 0 और n not equal to 0 एंड उसका वैल्यू क्या है? 1 कब है? ओनली n equal to 0। n equal to 0 पे उसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा। बाकी सारी जगह पे n equal to 0 को छोड़ के जो बाकी जो भी n की वैल्यू है वो सारे वैल्यू के लिए del of n will be 0। Now the next signal, it is the unit step। उसको यूनिट स्टेप क्यों बोलते हैं? उसका जो नेचर है, उसका शेप जो है वो कैसा है? एक स्टेप, हम स्टेप्स चढ़ते हैं ना 1 by 1, वो कैसा है? 0 है एंड 0 के बाद में क्या है? 1। तो स्टेप के जैसा उसका शेप है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट स्टेप। तो उसकी वैल्यू कितनी है? यू ऑफ टी की वैल्यू है 1 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 के बाद u ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। कहाँ तक 1 रहेगी ये वैल्यू? अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी तक u ऑफ t की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। एंड नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ क्या है वैल्यू? t लेस देन 0 टू माइनस इंफिनिटी वैल्यू कितनी है u ऑफ t की? इट इज 0। ओके, देन द नेक्स्ट सिग्नल, इट इज द डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप। सो दोनों में डिफरेंस आप कर पा रहे क्या? ऐसे आपने कंपैरेटिव स्टडी करना है। ऊपर क्या है? सारे सिटी सिग्नल है, नीचे क्या है? यस, n। okay, see n, it stands for this x-axis। okay, I will show you। I'm taking the pen here। see यहाँ पे 0 दिख रहा है, फर्स्ट सैंपल। 0 सैंपल कितना है यहाँ पे? 1 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2। एक्स एक्सिस जो रहेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में वो क्या रहेगा? n रहेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ये 1 वैल्यू कहाँ तक है? इंफिनिटी तक। ये एरो बताया है मैंने एंड यहाँ पे n, या n जो है वो क्या है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है? n है। वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम सिग्नल्स। हम जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं? सिग्नल्स को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक सेपरेट बुक फॉर दिस 5-day कोर्स। ठीक है, ये जो 5-day कोर्स है वो किस लिए मैंने डिजाइन किया है? इसलिए डिजाइन किया है बिकॉज यू शुड नो माई टीचिंग स्टाइल। मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है ये आपको समझ में आए, इसलिए मैंने ये 5-day कोर्स जो है शॉर्ट कोर्स डिजाइन किया है, जिस पर से आप जो फुल कोर्स है वो लेने के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने ये शॉर्ट कोर्स डिजाइन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट सिग्नल,
नेक्स्ट सिग्नल कौन सा है? इट इज द यूनिट रैम्प। ओके, कैन यू टेल मी वन थिंग, व्हाट इज यूनिट स्टैंड्स हियर यूनिट रैम्प में? सो द हिंट इज इन द डायग्राम ओनली। अभी यहाँ पे यूनिट क्या था इस सारी जगह पे? सिटी यूनिट स्टेप में मैग्नीट्यूड जो था सिग्नल का 1 है, या वो सिंगल स्टेप है इसलिए उसको यूनिट स्टेप बोला गया है। यहाँ पे यूनिट इम्पल्स क्यों बोला है? सिंगल इम्पल्स है। यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है? सिंगल। सुनो, वैसे ही इस सिग्नल में यूनिट रैम्प उसका नाम है, तो यहाँ पे यूनिटी क्या है वो बताओ मुझे। Answer is in the diagram. I have given you the hint also. Yes, who will answer? कौन आंसर करेगा? Linearity. Okay. So you are very close to the answer. शिव शंकर, डायग्राम में क्या क्या दिखाया गया है वो देखो ना। डायग्राम, यहाँ पे RFT है, यहाँ पे 0 है, और ये क्या लिखा है? What is written over here? Are you able to read that text? ये लेबल पढ़ सकते हैं क्या? What is it? Very correct. Sunil, Harshita, Shivshankar, yes. So the slope जो है रैम्प सिग्नल का वो कितना है? यूनिटी। सो इस सिग्नल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? R of t is equal to t for t greater than or equal to 0. तो अगर हम t को 0 पुटअप करेंगे तो ये सिग्नल हम कैसे, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सिग्नल फिर से सी, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, t की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हमने 0 पुटअप की तो r ऑफ t की वैल्यू कितनी आएगी? प्लीज आंसर। t अगर 0 है तो r ऑफ t की वैल्यू क्या इवैल्यूएट होगी? ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? r ऑफ t। ठीक है, आर यू एबल टू सी ऑल ऑफ यू the signal I am drawing? Yes. t 0 है, इस पॉइंट पे बोल रही हूं मैं। यहाँ पे t अगर 0 है तो r ऑफ t विल बी 0। t 0 है, या वेरी करेक्ट। अभी अगर 1 है t की वैल्यू तो r ऑफ t कितना हो जाएगा 1 पे? यस, आंसर, फटाफट आंसर देना है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? हाँ, टी की वैल्यू पुटअप करनी है। वेरी गुड वृशाली। तो आर ऑफ टी हो जाएगा 1। 2 पे क्या होगा? ऐसे सिग्नल ड्रॉ करते हैं। 2 पे आर ऑफ टी हो जाएगा 2। तो ये लीनियरली बढ़ रहा है सिग्नल जो है, 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे सिग्नल जो है ये क्या है? आर ऑफ टी है। एंड इसका स्लोप जो है, स्लोप का मीनिंग क्या है? डिफरेंस बिटवीन y वैल्यूज डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन x वैल्यू। सो स्लोप क्या है इसका? 1। दैट्स व्हाई दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज CT यूनिट रैम्प। समझ में आया ये सिग्नल सबको? यूनिट रैम्प। See, these signals are very much important. This is the discrete time. Yes, very good. Rushali, Shushankar. This one is DT unit ramp. अभी अगर हमें DT unit ramp ड्रॉ करना है, सी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे? अभी एक्स एक्सिस जो रहेगा वो n रहेगा, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। वाई एक्सिस जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड है। उसको हम लिखेंगे, नाम देंगे आर ऑफ एन। अभी अगेन पुट द वैल्यूज ऑफ एन। एन का वैल्यू जो है
n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आर ऑफ एन का n है, एंड n लेस देन 0 के लिए वैल्यू कितना है, 0. सो माइनस इंफिनिटी साइड वैल्यू कितना है आर एफ एन का, 0. कैन राइट लाइक दिस, वैल्यू कितना है, निगेटिव साइड, निगेटिव एक्स एक्सिस साइड इट इज 0. तो 0 पे वैल्यू क्या रहेगा, आर ऑफ एन का 0. 1 पे कितना होगा, यस वेरी गुड शिवानी, सॉरी शिवशंकर, तनुजा. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा. 2 पे कितना होगा, 2 पे वैल्यू होगा 2 एंड सो ऑन. तो डिस्क्रीट टाइम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, कंटिन्यूस टाइम है इसलिए हमने वहां पे क्या किया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी. और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. ये एम्पलीट्यूड हमने प्लॉट किया डॉट से, तो यहां से हमें प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे. तो ये हमारा बन गया आर ऑफ एन, और इसकी वैल्यू क्या क्या है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, दिस इज 1, दिस इज 2. एम्पलीट्यूड हम कहाँ पे बताते हैं, वाई एक्सिस पे, ठीक है. एंड ये जो सिग्नल है ऐसे डॉट डॉट बताना है, इसका मीनिंग क्या है, इट इज प्रेजेंट अप टू इंफिनिटी. ये सिग्नल जो है 3 तक ही खत्म नहीं होता है. ऐसे डॉट डॉट बताने का मीनिंग क्या है, वो सिग्नल माइनस इंफिनिटी तक, सॉरी नॉट माइनस, इट इज प्लस इंफिनिटी तक वो सिग्नल जो है वो प्रेजेंट है. हम प्लस इंफिनिटी तक सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, हर एक सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. इसलिए हमें क्या करना है, डॉट 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 दिखाना है सिग्नल पे. Whether these 6 signals are clear to you, please let me know in the chat box. Come on. Yes, Shiv Shankar. 10 स्टूडेंट्स है तो मुझे 10 रिस्पॉन्सेस चाहिए चैट बॉक्स में. I want 10 responses. See why I'm insisting your responses. अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी आपको फुल्ली समझ में आएगा. अगर आप हाफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हाफ से भी कम समझ में आएगा आप लोगों को. यस वेरी गुड. सो शुड आई प्रोसीड फर्दर. सो this PPT it tells us about the real exponential signals. See, ये जो सिग्नल दिख रहा है आपको, ये कौन सा सिग्नल है, ओके लेट मी टेक दी लेजर पॉइंटर, तो आपको दिखेगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज dt रियल ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल. उसका इक्वेशन क्या है, x ऑफ n इज इक्वल टू c इनटू अल्फा रेज टू n. अभी ये अल्फा की जो वैल्यू रहेगी ना वो कितनी रहेगी, c एंड अल्फा बोथ आर रियल, एंड सॉरी अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, ग्रेटर देन 1. ठीक है, अभी कोई भी एक एग्जांपल ले लो अल्फा का, ग्रेटर देन 1 वैल्यू ले लो, विल ड्रॉ द सिग्नल हियर ओनली so that signal will be very much clear to you. Yes, tell me any one value alpha greater than 1. All of you understood this equation or not? Just let me know. Equation समझ में आया है? Yeah, 3. Very good. Very good. So we will draw the signal here. यहीं पे draw करते हैं. So let me take the pencil और pen. See, ये सिग्नल अल्फा इक्वल टू 3 के लिए हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना लिया है हमने, 3 लिया. कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
सिग्नल कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी ये जो सी है वो क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी सी का मतलब क्या है? सी, इट इज द स्केलिंग फैक्टर। एम्पलीट्यूड जो रहेगा ना सिग्नल का, उसको क्या होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए सी की वैल्यू जो हम कितनी लेते हैं, 1। वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ सी टू बी 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना रखना है, अल्फा का वैल्यू 3 पुटअप करना है। ठीक है, एंड एन का वैल्यू क्या करना है, एन का वैल्यू ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, तो एन का वैल्यू कहां से कहां वेरी होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इट इज द टू साइडेड सिग्नल, इट इज प्रेजेंट एट plus infinity side and also at negative infinity side. Okay, so we will start drawing this signal at 0. What will be the value, please tell me. 0 पे क्या वैल्यू होगी, n इक्वल टू 0, c 1 है तो x ऑफ n क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ x ऑफ n is equal to, how come 0? Okay, I'm writing here. So we will verify your answer, Arshita. Okay, अल्फा कितना है, अल्फा 3 है ना। इस इक्वेशन में क्या करना है, c की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, एंड और आई विल राइट हियर 1 इंटू, लिखू क्या मैं यहाँ पे 1 भी, ओके, आई विल राइट हियर 1 ऑल्सो, so no confusion will be there. Yes, so here 1 into alpha is 3 raised to 0। तो n क्या है यहाँ पे, 0 है, n is 0। x of 0 will be 1 into 3 raised to 0। yes, very correct, रुशाली, हर्षिता, वेरी गुड। तो किसी कोई भी वैल्यू है, पावर अगर उसका 0 है तो उसका आंसर कितना होता है, एनी नंबर रेज टू 0, आंसर विल बी 1। सो at 0 you will be getting the signal value as, कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। ऐसा नो, अभी 1 पे कितनी वैल्यू मिलेगी, n इक्वल टू 1 पे, ये जो है क्या है, x एक्सिस जो है वो क्या है, n है, एंड ये सिग्नल हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं सिग्नल, 3 रेज टू n। सिग्नल जो है वो क्या है, 3 रेज टू n सिग्नल जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं। यस, या वेरी करेक्ट, हर्षिता, शिवशंकर, अमृता एंड तनुजा, वेरी करेक्ट। 3 रेज टू 1 हो जाएगा, 3 रेज टू 1 क्या इवेल्युएट होगा, 3 इवेल्युएट होगा। दिस वैल्यू we write here as a 3। now at n equal to 2, n equal to 2, what will be this, alpha raised to n, 3 raised to 2, 9 हो जाएगा। तो ये सिग्नल जो है क्या हो जाएगा, इसे वैल्यू जो है वो बढ़ता जाएगा। 3 के लिए कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3, वैल्यू हो जाएगा 27। अभी निगेटिव साइड क्या होगा बताओ, निगेटिव साइड सिग्नल इट इज बोथ साइडेड, पॉजिटिव साइड में भी है, निगेटिव साइड में भी। निगेटिव साइड -1 के लिए क्या वैल्यू होगा, कोई बताएगा, -1। तो एक सिग्नल भी आपको अच्छे से ड्रॉ करने को आया ना, बाकी सारे सिग्नल आप फटाफट चुटकियों में ड्रॉ करेंगे। बताओ, -1, 3 रेज टू -1 क्या वैल्यू होती है, 3 रेज टू -1,
n इक्वल टू -1 है, 3⁻⁻1 कितना होता है वैल्यू। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है आपका मैथ्स बहुत पक्का होना चाहिए। कौन बताएगा? 3⁻⁻1 का मीनिंग है क्या होता है? पावर अगर -1 है ना बच्चों, तो वो कहाँ पे चला जाता है? डिनोमिनेटर में। 3⁻1 1/3। ओके, 3⁻1 का मीनिंग क्या है? 1/3। या करेक्ट अनुजा। सो यू आर कैलकुलेटिंग। ओके, सो इट विल बी ऐसा कुछ तो आएगा सिग्नल। तो ये सिग्नल वैल्यू जो है वो निगेटिव साइड में क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी ऐसे। सो दिस सिग्नल यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/3। ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 1/3, 1/9 एंड 1/27। ये वैल्यू ये कम होती जाएगी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज लेट मी नो। इसमें कुछ डाउट है? ये सिग्नल जो है 3⁻n सबको समझ में आया है कि नहीं आया है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट अस सी द नेक्स्ट सिग्नल। सुनील, डबल टाइम समझ में आया क्या सुनील को? वेरी गुड, वेरी गुड। सो now can you draw this dt real decaying exponential signal? decaying ड्रॉ कर सकते हैं अभी? अगर आपको ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल समझ में आया है, वो क्या हो रहा है? ऐसे जैसे एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है ना, वैसा वो क्या है? ग्रोइंग है। वैसे ही ये जो डीकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसका नेचर कैसा है? एरोप्लेन क्या कर रहा है अभी? लैंड कर रहा है, ऐसा ना? एरोप्लेन कैसे लैंड होता है? ऊपर से नीचे तक। वैसा ये सिग्नल है। तो उसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज सेम, वन एंड सेम। क्या है? x of n c into alpha raised to n। बट व्हाट इज द डिफरेंस यू सी हियर? अल्फा का वैल्यू जो है वो अभी यहाँ पे कितना है? अल्फा का वैल्यू 0 to 1। अल्फा का वैल्यू ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल में कितना था? 1 से ज्यादा था। अभी यहाँ पे कितना है? अल्फा का वैल्यू 1 से कम है एंड 0 से ज्यादा है। आप ये सिग्नल ड्रॉ कर पाएंगे क्या? कोई एक वैल्यू बताओ अल्फा की 0 to 1 की रेंज में। हेलो, 0 की 1 रेंज में कोई वैल्यू बता सकते हैं क्या? यस, 0.5। वेरी गुड। सो इट इज 1/2। 0.5 इज नथिंग बट 1/2। हम यहाँ पे 1/2 ले सकते हैं। तो c अगर हमने 2 लिया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। हर एक सैंपल वैल्यू जो है वो c से मल्टीप्लाई होगी। इफ c इज ग्रेटर देन 1 से अगर c ज्यादा है तो हर एक सैंपल वैल्यू जो है वो क्या होगी? c से मल्टीप्लाई होगी। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो हम यहाँ पे x of n का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? वी विल राइट, ड्रॉ करने के बजाय हम क्या करेंगे? सिग्नल का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे? सी, आई एम राइटिंग हियर x of n is equal to 0.5 के लिए अगर हमने लिया है, c का वैल्यू कितना लिया है हमने? 1 लिया है। सिग्नल हमें कौन सा ड्रॉ करना है अभी? 0.5 raised to n और 1/2 raised to n। तो मैंने ये 1/2 क्यों लिया है? Why I am taking this 1/2? Because हमें क्या होगी? आसानी होगी। क्या करने में? वैल्यू कैलकुलेट करने में हमें आसानी होगी। ओके, सो हाउ वी कैन टेक कैलकुलेट दीज वैल्यूज? सो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो 0 पे कितनी वैल्यू होगी?
प्लीज टेल मी, n इक्वल टू 0 पे x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ रेज टू n की। फटाफट आंसर देना है। एंड आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन होना है। आज फर्स्ट डे था और कल से .6 हाउ टू सिलेक्ट सी। हमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है अनिल, इट इज गिवन, इट विल बी गिवन, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सपोज हमें क्या दिया है, एक सिग्नल दिया है, ठीक है, हाफ रेज टू n सिग्नल हमें x ऑफ n जो है। ओके, वी विल टेक वन अनदर एग्जांपल। क्या एग्जांपल लेंगे हम, 2 इंटू हाफ रेज टू। हमें क्या दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा, x ऑफ n इज 2 इंटू हाफ रेज टू n। प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे ना आप लोगों को, उसमें ये सारे इक्वेशंस रहेंगे एंड आपको सिग्नल ड्रॉ करना पड़ेगा। सी अगर हमने 2 लिया है, या वेरी करेक्ट वैशाली एंड शिवशंकर, अगर C1 है, C1 के लिए हाफ रेज टू n इट इवेल्युएट्स टू 1। अगर इफ C2 है, C2 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 1, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एट वहां पे 0, तो ये वैल्यू जो है हम ऐसे दिखा सकते। ये एरो जो है वो क्या इंडिकेट करता है, 0 सैंपल। एरो इंडिकेट्स द 0 सैंपल ऑफ x ऑफ n। अभी नेक्स्ट वैल्यू जो है 1 पे कितना होगा, 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। x ऑफ n कितना होगा, कि मैंने 1 इसलिए लिया था, 1 क्यों लिया था कि आपको पता चलेगा, वो स्केल फैक्टर हो जाएगा ना। या ये 1/2 होगा एंड स्केल फैक्टर 2 है, तो वैल्यू हो जाएगी 1। ऑल ऑफ यू गेटिंग, 1/2 हाफ रेज टू 1 होगा, पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू हो जाएगी 1। यस, वेरी करेक्ट। अभी 2 के लिए क्या होगी वैल्यू, n इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू हो जाएगी हाफ रेज टू 2, मतलब 1/4 multiply by 2, it will be 1/2। all of you getting this or not, please let me know। yes, very good। अब ये निगेटिव साइड में क्या होगा, -1, हाफ रेज टू -1, हाफ रेज टू -1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, अभी -1 है मतलब it will be 2 raised to 1 into 2, so it will be 4। yeah, very correct हर्षिता, स्केल फैक्टर 2 है ना, 2 into 2 4 हो जाएगा। देन -2 के लिए 2 raised to 2, 4 into 2 8 हो जाएगा। all of you following me or not, please let me know। तो ऐसे डॉट डॉट भी ड्रॉ कर लिखना है यहाँ पे। डॉट डॉट का मीनिंग क्या है, द वैल्यू इज प्रेजेंट, यहाँ पे वैल्यू और है दोनों साइड में, इंफिनिटी को जा रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफिनिटी। इज दिस सिग्नल क्लियर। तो वैल्यू क्या हो रही है, यहां से पॉजिटिव साइड में वैल्यू कम कम हो रही है, निगेटिव साइड में वैल्यू बढ़ रही है। सो दिस इज द डीकेइंग एक्सपोनेंशियल। या निगेटिव साइड में बढ़ रही है पर पॉजिटिव साइड में डिक्रीज हो रही है, वैल्यू इज डिक्रीजिंग एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस। yes, very good harshita, shivshankar, rushali, remaining students please come up in the chat box। yeah, tanuja, sunil, very good। yeah, shivani,
सबको आंसर देना है। वेरी गुड अनुजा। एंड कुछ डाउट है तो वो भी पूछने हैं। सी दिस इज दी dt रियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अभी अल्फा का वैल्यू जो है, तो सारा चक्कर किसका है इसमें? आप कैन यू ऑब्जर्व द इक्वेशंस? इक्वेशन इट इज सेम। हर एक सिग्नल के लिए इक्वेशन क्या है? सेम ही है। तो सिग्नल वैरी किस पे हो रहा है? ऑन वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू जो रहेगा उस पर सिग्नल का शेप या नेचर वो डिपेंड रहेगा। तो आपको याद क्या करना है एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए? ओनली वन थिंग यू टू रिमेंबर, दैट इज दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसको सिर्फ आपको, कहाँ गया कर्सर, या इस इक्वेशन को आपको रिमेंबर करना है एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए। ऐसा नो, ये अल्फा की रेंज जो है, हर एक रेंज आपको याद रखनी है। अल्फा अब याद कैसे रखेंगे? ये ग्रोइंग है, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल है, सिग्नल जो है वो बढ़ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है अल्फा। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अल्फा का वैल्यू क्या है? इट इज लेस देन 1। ठीक है, सिग्नल का वैल्यू कम हो रहा है, अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 है। सिग्नल वैल्यू इट इज ग्रोइंग, अल्फा इज ग्रेटर देन 1। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अभी ये डबल साइडेड सिग्नल है, तो अल्फा का रेंज क्या है? -1 to 0। से अभी मैं ये सारे सिग्नल्स एक पेज पे दे रही हूं, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पा रहे हैं। पर ये याद रखना, अगर हर एक सिग्नल आप अलग अलग स्टडी करेंगे तो ये याद रखना आप लोगों को कितना मुश्किल होगा। कैन यू इमेजिन दिस? प्लीज रिप्लाई। कंपैरेटिव स्टडी का कितना इंपॉर्टेंस है? यस, रिप्लाई ऑल ऑफ यू, whether the comparative study is useful or not. All are there na? Yeah, very good Rushali, शिवानी, हर्षिता। तो इसीलिए मैं बोलती थी कि डू दी कंपैरेटिव स्टडी, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको ये स्टडी यूजफुल हो सकती है। ठीक है, अल्फा का रेंज अगर -1 to 0 है तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा? ऐसे टू साइडेड हो जाएगा। अल्फा का अगर रेंज है -1 to 0, सॉरी, तो -1 to 0 का मतलब क्या है? कितना हो सकता है वैल्यू -1 to 0? 0 से लेस मतलब निगेटिव वैल्यू होगी। एंड निगेटिव वैल्यू कहां तक होगी? अप टू -1 ओनली। -1 से कम वैल्यू नहीं होगी। या वेरी करेक्ट वृशाली, वेरी करेक्ट। -1/2 इज वेरी करेक्ट आंसर। तो -1/2, -1/4, -1/6, ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये सिग्नल आप ड्रॉ कर सकते हैं। प्रैक्टिस जो रहेगी उसमें हम ये लेंगे, बेसिक आपके समझ में आना चाहिए। अभी ये जो दिख रहा है ना, ये डीकेइंग टू साइडेड सिग्नल है। एंड ये वाला दूसरा जो है, इफ अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो कौन सा सिग्नल रहेगा? ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। वो क्या रहेगा? टू साइडेड रहेगा। वो सिग्नल जो है वो क्या है? टू साइडेड। या टू साइडेड सिग्नल है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज विल बी देयर। क्या हो रहा है इसको? ये सिग्नल जो है वो क्या हो रहा है? दोनों तरफ है। सैंपल वैल्यूज क्या है? अल्टरनेट पॉजिटिव साइड, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड एंड निगेटिव साइड आपको मिलने वाले हैं। टू साइडेड सिग्नल जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर आप पुटअप करेंगे, यहाँ पे जो रेंज दी है, तो आपको इस तरीके का सिग्नल मिलेगा।
Now this is the continuous time real exponential signal. अभी ये डीकेइंग एक्सपोनेंशियल है, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन 0. अल्फा की वैल्यू रहेगी लेस देन 0 फॉर डीकेइंग सिग्नल. अगर वो सिग्नल जो है वो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, इक्वेशन देखो ये क्या है भाई, इक्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का. हेलो, क्या डिफरेंस दिख रहा है कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में? प्लीज टेल मी. Yes, e raised to 80. Yeah. Okay. A है but it is the variable only ना. A and alpha. Yeah. But the T is the major concern. T है ना, यहाँ पे क्या था, N था. उतना ही डिफरेंस है बच्चों. N की जगह पे सिर्फ क्या रखना है, T रखना है. ये जो इक्वेशन है उसमें N की जगह पे सिर्फ T रखना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंटिन्यूअस टाइम का इक्वेशन मिल जाएगा, अल्फा लेस देन 0. तो ये डीकेइंग कहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो, अल्फा का रेंज यहाँ पे क्या था, 0 to 1 था, यहाँ पे कितना है, ए का रेंज लेस देन 0 है. ओके, सो यहाँ पे दो ही रेंजेस है. इफ a is greater than 0, the signal it is growing exponential. If a is less than 0, then signal is the decaying exponential. ऐसा याद रखना है continuous time signal के लिए. Is these two signals clear? Yes. Continuous time, decaying and growing. Very good. Now let us proceed further. Sinusoidal signals. See, this is the continuous time sinusoidal signal. उसका एक्सप्रेशन क्या है, x of t a cos omega t plus phi. Then discrete time sinusoidal signal, उसका क्या एक्सप्रेशन है, a cos omega n plus phi. एंड ये उसका सिग्नल मैंने ड्रॉ किया अभी. दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम डीकेइंग साइनोसॉइडल सिग्नल. अभी अगर हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल को साइनोसॉइडल सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा डीकेइंग साइनोसॉइडल सिग्नल मिलेगा. ठीक है, ए का वैल्यू लेस देन 0 है. दिस इज सीटी ग्रोइंग साइनोसॉइडल सिग्नल. उसका ए का वैल्यू इसमें क्या है, ग्रेटर देन 0. This is discrete time decaying sinusoidal signal, also the discrete time growing exponential signal. Now this is the template 1. This is for elementary CT signals. ये सारे जो सिग्नल्स हमने स्टडी किए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, वो मैंने क्या किया है, इसमें एक टेम्पलेट में मर्ज किया है उसको. तो आपको पढ़ने में क्या होगा, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी. इसका एक स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट. हेलो, टेक दिस स्क्रीनशॉट. लिया क्या स्क्रीनशॉट? या, वेरी गुड. तो आपको क्या करना है, कोई भी सिग्नल का इक्वेशन अगर दिया आपको, तो ये टेम्पलेट देख के आप क्या कर सकते हैं, उस सिग्नल को
ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, so we will be drawing this signal by using this template. This is template number 2. It is for discrete time elementary signals. So whether these two templates are useful to you, please reply in chat box. इसका भी एक snapshot ले लो आप लोग. Hello, take the screenshot. Yes, very good. Very good, Amruta, Shiv Shankar, Harshita, Tanuja, Rushali. Very good. So, yes, thank you. Thank you, Harshita. So, आप लोगों को ये जो सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट है वो कैसे आसान हो सकता है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरा टारगेट है ना. The practice problems. Okay, so to draw the following signals. इसका भी एक स्नैपशॉट ले लो एंड आप लोग क्या करेंगे, ये सिग्नल ड्रॉ करने की कोशिश करो एज अ होमवर्क. यहाँ पे हम एक दो सिग्नल ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया आएगी. सो विल टेक फर्दर 5 मिनट्स. इज इट ओके? और 5 मिनट्स लेंगे क्या हम? आप लोग लेट ज्वाइनिंग किया ना मीटिंग, इसलिए हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है. या वेरी गुड. अभी ये जो 2 इंटू यू ऑफ टी सिग्नल है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? u of t. Okay, we will see the template. Okay, which signal is this 2 into u of t? ये रेड से हमने मार्क किया है u of t. It is the unit step signal. अभी ये इक्वेशन देख के हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कौन सा सिग्नल है. ठीक है, सो शुड आई गो टू द टेम्पलेट? Okay, I am waiting from this slideshow mode so that you can see the templates faster. See, this is the unit impulse signal u of t. उसका इक्वेशन क्या है? इट इज 1 for t greater than 0. अभी इस सिग्नल को हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है. यहाँ सुनो, यहाँ पे दिख रहा है 2 into u of t. कैसे सिग्नल आएगा ये? Yes, how this signal will be. So I am opening the paint so that we can draw the signal. Paint is visible, all of you? Paint का स्क्रीन विजिबल है ना? ओके ओके. सी, ये हमारा हो गया y एक्सिस. ओके, तो x एक्सिस भी हम ड्रॉ करेंगे. देखो अभी u ऑफ t सिग्नल कैसा है? उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है. इसका वैल्यू है 1. We will take pencil. This signal is u of t. ऐसा ना, उसको हम लेबल करना है हमें. ये सिग्नल है u of t. एक्स एक्सिस पे क्या बताना है? t बताना है. एक्स एक्सिस क्या है? एरो बताना है, t बताना. अभी ये हो गया u of t. हमें सिग्नल कौन सा चाहिए? प्रॉब्लम में क्या पूछा है? 2 into u of t. तो एम्पलीट्यूड जो है ना, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड, आई एम टेकिंग डिफरेंट कलर. ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन होगा किसका? ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना 2 वैल्यू, हाँ
तो 2 वैल्यू जो है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, सो रिजल्टेंट सिग्नल कैसा होगा, 2 इंटू यू ऑफ टी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 इंटू यू ऑफ टी, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी द सिग्नल u of t 2 into u of t will be this signal. Okay, so we'll rub this one. ये सिग्नल हमारा बन गया 2 into u of t. All of you understood this? ये सिग्नल कौन सा है? You can write here 2 into u of t. Whether this signal is clear? नेक्स्ट सिग्नल कौन सा है? प्लीज आंसर ऑल ऑफ यू। हाँ, तो जो भी इक्वेशन रहेगा उसके साथ में जो क्वांटिटी रहती है वो एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है उसको मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट सिग्नल क्या है? यस, 4 इंटू डेल ऑफ एन। डेल ऑफ एन सिग्नल कौन सा है? इट इज दी डिस्क्रीट टाइम। कहाँ है? यहाँ, दिस इज डेल ऑफ एन। उधर गया, दिस वन, दिस इज डेल ऑफ एन। डेल ऑफ एन सिग्नल का वैल्यू एट एन इक्वल टू 0 सिर्फ 1 है। एंड क्या करना है हमें, किससे मल्टीप्लाई करना है? डेल ऑफ एन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स ऑफ एन क्या होगा? 4 इंटू 1। सिर्फ एन इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम कैसे सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं? आई एम ड्रॉइंग डायरेक्टली दी फाइनल सिग्नल 4 इंटू डेल ऑफ एन। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सिग्नल 4 इंटू डेल ऑफ एन। डेल ऑफ एन का एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है। उसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा सिग्नल ये बन गया 4 इंटू डेल ऑफ एन। All of you understood this signal? यहाँ पे क्या है? This is your n. बाकी वैल्यूज पे क्या रहेगा? 1 2 3 4 सारे वैल्यूज पे सिग्नल का वैल्यू क्या रहेगा? 0। डेल ऑफ एन का वैल्यू क्या है? इट इज 0 अदर देन n इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? ओके, देन ये आर ऑफ टी हमने ड्रॉ किया था जब मैं रैम्प सिग्नल एक्सप्लेन कर रही थी। सो यू शुड एबल टू ड्रॉ दीज टू सिग्नल्स। इसका भी एक स्नैपशॉट लिया क्या आप लोगों ने बच्चों? स्नैपशॉट होमवर्क का लिया क्या? यस, वेरी गुड। सो यू ट्राई टू ड्रॉ ऑल दीज सिग्नल्स। ठीक है, आज ये सारे सिग्नल्स ड्रॉ करने का ट्राई करो एंड कल मुझे सारे आंसर्स दिखाने हैं। ओके, आई विल चेक द आंसर्स। अगर आप लोगों को इस सिग्नल में डाउट है देन वी विल ड्रॉ दिस सिग्नल्स इन आवर लाइव सेशन। ओके, सो शुड वी स्टॉप हियर? आज का सेशन कैसे लगा आप लोगों को? सारी बातें समझ में आई? सारे कंसेप्ट्स? तो आज आप लोग क्या करो, रिकॉर्डिंग देखो, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ। ये सारे होमवर्क सिग्नल्स ड्रॉ करो। उसमें कुछ दिक्कत आती है तो मुझे डाउट कल पूछना है स्टार्ट ऑफ द सेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर?
Okay. So we'll stop here. So we'll meet tomorrow at 6 p.m. Till then, bye bye. Yeah, welcome, Rushali. So I'm ending the meeting. Yeah. Yeah, thank you and welcome all of you.